द AIB नॉकआउट कंट्रोवर्सी ने जैसे पूरे देश को हिला के रख दिया है। हाल ही में हुए मुंबई में एक इवेंट में पार्ट लेना करण जौहर, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर को काफी महंगा पड़ गया है। इवेंट में एब्यूजिव ह्यूमर पर काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। In this event, jokes were made on many famous personalities, and some of them were not present in the event. AIB में पार्टिसिपेट करने वाले कुछ सेलिब्रिटीज पर FIR रजिस्टर की गई है। This AIB has created a big debate in the film industry. जहां पूरा बॉलीवुड इस कंट्रोवर्सी पे कमेंट कर रहा है, वहीं हमारी पब्लिक का इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहना है, आइए जानें उनके व्यूज। I don't think this is a question of freedom of speech and expression. This is a question of censorship of the internet. ठीक है, आप इंटरनेट पे कितनी चीज़ों को सेंसर कर लेंगे? Why are you targeting one group? ठीक है, लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मूवी स्टार्स थे तो इनकी बहुत रीच है। मूवी स्टार्स ये भी तो देखें कि उन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया चैरिटी के लिए, अब वो पब्लिसाइज करें। एंड सेकेंडली, जिन लोगों को भी इससे ऑब्जेक्शन है, या तो उन्होंने यूथ को बात करते सुना नहीं, या वो कुछ ऐसा आपको दिखाना चाहते हैं, कोई आइडियल सोसाइटी जिसमें हम रहते ही नहीं हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी ये नॉकआउट देखा है, दे कैन आइडेंटिफाई विद इट, द यूथ कैन आइडेंटिफाई विद इट, बिकॉज लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो वाई दिस पर्टिकुलर नॉकआउट इज बीइंग टारगेटेड? एंड अगर आपको सेंसरशिप इंटरनेट पे करना है, वो नहीं हो सकता, बिकॉज इंटरनेट इज़ अ वेरी वाइड मीडियम एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन इट। सो आई थिंक दैट इट इज़ रॉन्ग कि पॉलिटिशियंस आर टारगेटिंग वन पर्टिकुलर थिंग, एंड जिसको नहीं अच्छा लग रहा है, जिसको लग रहा है कि ये खिलाफ है, वो मत देखें। As simple as that. If somebody finds it offensive, in the first place you shouldn't watch it. That's the first thing. Nobody's forcing you to watch it, and if you have any legal matters with it, you go to the court. Okay, and I'm sure the courts will decide the way I'm speaking. They'll say the same thing, because they haven't actually said anything against somebody who wasn't really willing to have it said against him. So that's my point. And if you say that they are trying to demoralize the society and spread all the actually contaminating the minds of the youth and everything, then I think if the youth can be contaminated by just a small roast like this, then the problem lies elsewhere. It's not really in the roast, it's basically somewhere else, and we need to address that matter, not this one. I'm in support of them presenting their views as they want to do it, and people should have the freedom to choose what they want to watch and what they do not want to watch. Okay, we can say that freedom of speech is there, but it's generally it should be in certain kind of a boundary. You should not cross your limits there. Basically, I think that the AIB roast, it was definitely a fun thing to watch. It was very hilarious, and it was a good way to raise charity also. But on the other hand, I don't think freedom of speech should be exercised to that sort of an extent on national television. As we all believe that India is a country which is going forward, it's going to great heights, it's experiencing. At the same time, we need to hold on to our roots, and those roots cannot be left out just on the basis of wanting to be so free in your speech that you influence the masses in a negative way. मैं अगेंस्ट है ये सारी चीज़ों से, बिकॉज पहली गल तो ठीक है, अपने को राइट टू फ्रीडम स्पीच हैगी है कि कुछ भी बोलो, बट तुसी एटलीस्ट आता देखो कि कित्थे बोल रहे हो। आई मीन तुसी पहला कोई परमिशन नहीं लीती, ठीक है। दो मैनू तो पर्सनली दसा कॉमेडी नाइट्स विद कपिल भी हर कुछ डबल मीनिंग ही होता है, ठीक है। तुसी दैट इज़ नॉट अ फैमिली शो, क्योंकि जे थोड़े नाल कोई टीनेजर्स या फिर छोटे बच्चे बैठे हैं, वो हमेशा एक क्वेश्चन करेंगे मम्मी पापा नू कि मम्मा आ की हुंदा है। हुण उत्थे की जवाब दिता जाए बच्चों नू? यंग जनरेशन नू कुछ अच्छा सीखने नू मिलना चाहिए ना, ठीक है। यू कैन से सब एनीथिंग, बट एटलीस्ट उन्होंने इस तरह प्रेजेंट करो कि वो गलत ना लगे। हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिटेशन होनी चाहिए, वरना करने को तो बहुत कुछ हो सकता है, हम किसी भी हद में पार कर सकते हैं, बट हर चीज़ की कोई लिमिटेशन होनी चाहिए। द प्रॉब्लम इज़ दैट बाय ऑल दीज थिंग्स we are encouraging all the evil things which are happening in our society, just for the sake of 40 lakhs. 40 lakh is nothing for all these controversies, and I personally feel that it should be stopped, and it's not good for our society. एंटरटेनमेंट का भी कोई लिमिट होती है। आई टोटली एग्री विद हिम कि कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए, स्पेशली हर चीज़ ये नहीं है कि आप गालियाँ दे रहे हैं दैट इज एंटरटेनिंग, ये नहीं होता। फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम किसी और को गालियाँ ना दें। वी आर इनकरेजिंग ऑल दीज थिंग्स, हम ये चीज़ इनकलकेट कर रहे हैं
आजकल की जनरेशन में ठीक है, हम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये बोल के, बट ऐसा नहीं है कि हम ये कुछ बोल दें कि चलो आपने गाली दी और आपको शाबाशी मिली। आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि ठीक है, इट वाज एंटरटेनिंग, बट ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ एक्सपेक्ट ना करें, चीज़ें कोई देखे ना और इनकलकेट नहीं होगी। सो आई थिंक देयर शुड बी सम लिमिटेशंस। According to me, it's not good. See, in India, film stars are depicted as idols for youngsters, as idols for elders, everybody. But यहाँ पे जो हुआ है, मतलब हाँ ठीक है, उस पर ये लिखा हुआ था कि हमारे लिए अलाउड नहीं है, वो देखो ना देखो कोई चक्कर नहीं। पर इंडिया में अगर आप कोई चीज़ सेलिब्रिटी को एक आइडल मानते हैं तो वो चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। उस हिसाब से एक आइडल को आप गाली देते हुए, आप गंदी से गंदी गालियाँ देते हुए सुन सकते हो उसमें, और वो ठीक नहीं लगता। Thank you for watching. Stay tuned.